welcome to HR Voices. I'm Mary Joy, and this is episode 2 about the digitalization edge in human resources. Today, we have Mr. Sarmat Sultan as our guest, and he's an experienced HR professional who has seen firsthand how the shift towards digitalization is transforming human resources. Thank you so much, Mr. Samad, for joining us. And before starting a conversation, could you please introduce yourself to our listeners and also tell us what inspired you to join the field of human resources? Yes, sure. This is Sarma Sultan. I have done graduation BBA in HR from University of Education. I began my career with GNN, where I gained foundational HR experience in a fast-paced media environment. Working in the broadcast sector helped me understand the importance of efficient talent management, employee coordination, and handling dynamic workforce challenges. After that, I transitioned to a software house, which gave me exposure to IT and digital work culture. Later, I joined PKLI, it's Pakistan Kidney and Liver Institute. It's a well structured healthcare organization. This role helped me enhance my skills in policy implementation, compliance, and employee welfare. Currently, I am working at Ombre. It's a textile industry where I continue to grow as an HR professional. In this role, I focused on strategic HR practices, including talent acquisition, employee engagement, and digital HR transformation initiatives. My inspiration to join HR came from a genuine interest in understanding people, workplace dynamics, and how organizations grow through their employees. I have believed that peoples are the true driving force behind any successful business, and HR gives you the unique opportunity, like कि अगर आप HR में हैं या आप HR representative हैं, तो आप कंपनी को और कंपनी के लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑनर्स. और इसके अलावा फ्यू स्पेसिफिक रीजंस भी थी जो मुझे इंस्पायर्ड किया कि मैं HR कैरियर को चूज करूं, like passion for people and development, the strategic role of HR in managing companies' asset, companies' policies, and also working with the company culture and also leadership. Desire to create a positive workplace culture, क्योंकि आजकल की जो वर्क प्लेस है वहाँ पर पॉजिटिव कल्चर होना बहुत ज़रूरी है. HR I can build trust, fairness and collaboration. एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो इंटरेस्ट इन कंटिन्यूस लर्निंग है मेरा ना, कि कंटिन्यूस लर्निंग इस फील्ड में आप कंटिन्यूस लर्न करते हो बिकॉज आप मोस्टली न्यू न्यू लोगों से मिलते हो, तो आपका इससे ना मजीद जो है ना एक्सपीरियंस जो है वो गेन होता है आपको. So basically, like meeting new people, and that's your source of inspiration. यस, आप कह सकती हैं. Okay, that's really inspiring. Now, let us talk about the main topic, which is digitalization in HR. So many people hear about this word, but they don't fully understand it. Please, can you tell us what is meant by the digitalization of HR, how the HR is being redefined by digitalization? And can you also share how, in your experience, things have shifted from manual paperwork to automation? Can you explain us the differences? Yes, sure. Digitalization of HR basically ये वो था refers to the transformation of traditional paper-based human resource processes into automated. Like के Yes. शुरू शुरू में जो Hmm. चीजें होती थी वो मोस्टली पेपर वर्क होता था. लोग जो है ना वो पेपर वर्क को ही आगे मतलब कंटिन्यू करते थे. इतना लंबा लंबा लिख के तो बंडल्स होते थे. लाइक के हम ऑफिस में जब भी जी जाते जी. थे, विजिट करते थे, तो जो सिस्टम्स जो थे वो सब चीज ईच एंड एवरीथिंग पेपर वर्क कभी इधर पड़े है, ईच एंड एवरीथिंग ना मैसअप होता था. तो डिजिटल जो HR है ना, digitalization these process have shifted to automated HR such as HRIS, human resource information system. This is the whole system where we can see employer activity, company activity, कि कंपनी क्या क्या चीज कैसे कैसे मैनेज कर रही है. और ये पूरा सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम पूरी कंपनी का जो डाटा है वो मैनेज कैसे कर सकते हैं. जस्ट मैं आपको एक छोटी बहुत एग्जांपल देना चाहूंगा. जो मैनुअल वर्क पहले होता था बिफोर डिजिटलाइजेशन,
employ data stored in files and paper documents, attendance marked manually on sheets or on Excel, payroll calculated by hand, and एक्सेल कैलकुलेटर ये बहुत बड़ा एक था हमारे लिए, वो है ड्रॉबैक कि डाटा एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं रहती, ना ही इसमें कोई हम मतलब कि किसी भी चीज को इतना बल्क में, अगर आपकी फर्ज करें मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के हैं 6,000 और 7,000, so how can you manage payroll on Excel? Hmm. After that, recruitment done through newspaper ads and also through physical interviews, performance evaluation based on subjective and handwritten reports. Hmm. नाउ आफ्टर डिजिटलाइजेशन के जब डिजिटल एचआर अब आ चुका है, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, ऑल एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स आर डिजिटली स्टोर्ड एंड एक्सेसिबल एनी टाइम्स। ओनली हम क्या करते हैं, हम एक एम्प्लॉय का कोड एंटर करते हैं और हमारे पास उसकी सारी की सारी डिटेल हमारे पीसी के ऊपर होती है। अटेंडेंस ट्रैक थ्रू बायोमेट्रिक सिस्टम्स, पेरोल प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली विद इंटीग्रेटेड सैलरी एंड टैक्स मॉड्यूल्स। पहले तो ये होता था कि टैक्स को भी कैलकुलेट किया जाता था, किसी की सैलरी कितनी है, वो उस टैक्स स्लैब में कितना आ रहा है और उसकी कितनी डिडक्शंस हो रही हैं, और उसको कितना अगर हम बोनस पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर, तो वो हम उसको उसकी भी कैलकुलेशन सैलरी स्लैब्स में से करते थे। बट विद द एचआर सॉफ्टवेयर और डिजिटलाइजेशन, ऑल दीज आर अ पीस ऑफ केक विद। ओके। एचआर में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए डिजिटलाइजेशन ने बहुत आसान कर दिया है, बट आई वांट टू नो अबाउट द अदर साइड एज वेल। कैन यू प्लीज हाईलाइट कि किस तरह से बेनिफिट्स जो है डिजिटलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है टू द जॉब कैंडिडेट्स एंड टू एम्प्लॉयज? I am an HR professional, so from my perspective, efficiency and time saving. Automation reduces manual paperwork and repetitive administrative tasks like attendance, payroll, and leave management. HR प्रोफेशनल अब क्या है कि अब इन सब चीज़ों से निकल के वो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के ऊपर और टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं इजीली। कि अब ये हमें नहीं है कि वी हैव टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, लाइक वी हैव टू मैनेज अटेंडेंस ऑन पेपर, वी हैव टू रन पेरोल मैनुअली, और हमारे वो सर में वो चीजें आ रही है कि हम इतना यस, बट चीजें माय वो कर क्वेश्चन रहे हैं, इज कि हमने ये भी जो कैलकुलेशन जॉब करनी है। कैंडिडेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको कैसे बेनिफिट कर रही है डिजिटलाइजेशन? जी जी, मैं उस चीज पे भी आ रहा हूँ। जो जॉब कैंडिडेट्स हैं ना, वो सिंप्लीफाइड उनके एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुके हैं, लाइक कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जॉब ऑनलाइन थ्रू पोर्टल्स और कंपनी वेबसाइट्स, and we can track their application, and also we have sent them uh, timely updates, making the process transparent and quick. On the other hand, faster hiring and onboarding digital tools जो है वो हमें हेल्प करती है कि कैंडिडेट को स्मूदर रिक्रूटमेंट और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो, लाइक ई साइनिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्चुअल ओरिएंटेशन सेशंस एंड डिजिटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो है उनके, वो हम उनको ऑनलाइन ही करा देते हैं, तो जो हमारे लिए काम आ जाता है। मोर ओवर, उनकी ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस एंड फीडबैक वो भी ऐसे ही है कि एम्प्लॉय कैन व्यू देयर परफॉर्मेंस गोल्स, फीडबैक एंड प्रोग्रेस इन रियल टाइम थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि एलएमएस होता है एक, जो एम्प्लॉय को लॉगिन जिसका दे दिया जाता है, या उनकी एचओडीज को हम उनका लॉगिन दे देते हैं, तो वो थ्रू एलएमएस अपनी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, जिसमें इंश्योर ये भी वो किया जाता है कि ये फेयर है और जो एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेटिंग भी है। और फोर्थ जो है वो सेल्फ सर्विस एंड एक्सेसिबिलिटी है एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉय कैन अपडेट देयर पर्सनल डिटेल्स, लाइक के अब जैसे हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है उसमें एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर लीव्स एंड डाउनलोड पे स्लिप्स एनी टाइम थ्रू एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। पहले ये होता था कि हर दूसरा एम्प्लॉय जब भी सैलरी ट्रांसफर होती थी या उनको डिसबर्स होती थी, तो वो आके हमारे पास कहते थे कि हमें स्लिप चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी सैलरी इतनी कम है, लाइक के डिडक्शंस एंड ऑल। now they got their slips anytime through software, and they are easy to access their salary तो slips. कैन यू टेल अस अबाउट द सॉफ्टवेयर्स एज वेल जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं? जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, बेसिकली ये है ये। तो इस पे मजीद फिर जो है हमारे पास टाइप्स आ जाती है सॉफ्टवेयर की, लाइक सैप,
ओरेकल HCM, बैम्बू HR, और मोस्टली जो है ये सैप और बैम्बू HR ये ज्यादातर चल रहे हैं हमारे पास। और अब जो है फ्लो HCM ये काम कर रहा है। जो ओम्ब्रे है, हम ओम्ब्रे में जो मैं काम कर रहा हूँ वो जो है सैप पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसमें ना जो है हमारे पास ATS है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इट अलाउज HR टीम टू post jobs on multiple platform, receive applications, filter candidates based on keywords और experience। अब वो हमारे लिए, हम जो प्रोफेशनल्स मतलब है, हमारे लिए वो सीन नहीं रहा कि हम एक एक CV को देखें, एक एक CV को पढ़ते रहे। हमने कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जिस जिस जॉब की जिस चीज की हमें चाहिए, तो हम उसी टाइप के वो बंदे को निकाल लेते हैं। वो कीवर्ड से ही सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही निकाल लेता है। तो किस तरह से जी जी, इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉयज का डाटा वो सेफ है? सैप जो है ये हमें एक बहुत बड़ी सेफ्टी दे रहा है इस टाइम में, कि इनकी फायरवॉल्स हैं। उसके अलावा इनको कोई भी इसके एक्सेस होता है, इसकी ना परमिट्स होती हैं, जो कि सैप की टीम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी परमिशन होती है कि वो बंदे को किस हिसाब तक परमिट करना चाहिए, किस किस चीज का एक्सेस देना चाहिए। तो इस हिसाब से जो एम्प्लॉय का डाटा है वो सेव रहता है, क्योंकि HR के पास प्रॉपर उसकी एक्सेस होती है। HR आगे जो HODs होते हैं या जो मोस्टली सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको सिर्फ उस चीज की एक्सेस देता है जहां तक वो एम्प्लॉय का डाटा देख सकते हैं या उसकी लीव्स अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट के वो उसके बाद वो वहां पे कोई भी एडिटिंग या कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वे में एम्प्लॉय का पूरा डाटा सेव और एक्यूरेट रहता है। Okay, thank you so much. Can you tell me that how do you manage the challenges? New technologies जब evolve होती हैं, जाहिर है there are some challenges as well with it. तो आपको क्या difficulties जो हैं वो face करनी पड़ती हैं आपके experience में? What are the difficulties associated with the digitalization of HR? Yeah, like it, digital HR has brought immense convenience and efficiency to HR, but it has also introduced several challenges also, like कि जैसे आप कह रही है कि जो जो challenges हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, हमें अडॉप्टिंग न्यू सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। लाइक अब हम वर्क कर रहे हैं इस पे सैप पे, तो अगर किसी और कंपनी में जाते हैं वहाँ फ्लो HCM है, तो ये जो चीज़ है इसमें हम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। when डिजिटल टूल्स जो है ना वो फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, इट वाज सो मच डिफिकल्ट फॉर अस and also for employers to adjust, understanding new software, navigating dashboards, and managing data online. It हम्म। was felt overwhelming at the beginning. आपने किस तरह से Yeah. अडेप्टेशन को, इस चैलेंज को ओवरकम किया था, अडेप्टेशन के चैलेंज को? Mostly, I have focused on continuous learning, attending training sessions, watching tutorials, and exploring the system hands-on. Over time, I became more comfortable and even started helping my colleagues adapt to new tools. ये जो चीजें है ना, ये हम ऐसे है कि कंटिन्यूअस लर्निंग जब हमारी होगी तो ही हम इन चीजों से ओवरकम कर सकते हैं। अगर तो हम उस चैलेंज को फेस ही नहीं करना चाहते या कुछ देखना ही नहीं चाहते, तो फिर हम ये नहीं कर सकते ऐसा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो नाउ हियर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। डू यू थिंक सरमत digitalization is creating entirely new roles within HR, like people analytics specialists या database managers जो हैं, कौन कौन से roles हैं जो digitalization ने within HR create कर दिए हैं? Digitalization has not only transformed traditional HR function, but also created entirely new and specialized roles. As HR becomes more data driven and technology oriented, professionals are now required to blend people management skills with digital and analytical expertise. Here are some roles which थोड़े से मैं जो explain करना चाहूंगा कि वो जो है ना मॉडर्न HR में कैसे कन्वर्ट हुए। अब एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट है, तो मोस्टली ये क्या करते हैं, दीज प्रोफेशनल्स यूज डाटा टू आइडेंटिफाई trends, predict workforce behavior, and support decision making. They analyze employee performance and turnover engagement and also hiring patterns to help HR leaders make strategic evidence based decisions. और इसके अलावा ये HR डाटा या HRIS मैनेजर, जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको मैनेज करने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। लाइक ensuring data accuracy, maintaining employee records, and integrating HR platforms like payroll, attendance, and performance systems. So I have another question, Sarmit. If Yes, digitalization yes. has evolved
so many roles in within HR. So do you feel threatened because of it कि HR professionals की job जो है it would be in danger in future? देखिए, इसका तो ये है कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी तो बंदे ही चाहिए ना। लाइक कि अगर आप कोई भी चीज चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑटोमेटेड तो नहीं है ना। सॉफ्टवेयर को हम कोई कमांड देंगे तो ही वो चलेगा ना। जब कमांड देने वाला ही कोई नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स जो है ये डेटा एक्यूरेसी और ह्यूमन के लिए, हेल्प के लिए, मतलब उनका काम हम्म मजीद आसान करने के लिए हम्म पूरी जगह मुझे नहीं लगता कि ये ले सके। So basically, it will not replace the humans. Yes, This is it will what you're not, trying to say. according to my point of view. And finally, for all fresh graduates or early career professionals who are listening to us, what advice would you like to give them? मैं सिर्फ यही कहूंगा, एंटरिंग द फील्ड इन टुडेज डिजिटली ड्राइवन एनवायरनमेंट इज बोथ एक्साइटिंग एंड competitive. लाइक ए competitive तो मैं समझता हूँ हर फील्ड ही है, सिर्फ ये नहीं। तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और समवन अर्ली इन HR career, his success now depends on just on understanding traditional HR functions, but on how well you can integrate technology, data, and human insight. कौन से digital skills हैं they should must learn in this age digitalization? स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स जो है ना, जो इनको होना चाहिए, या जो उसके लिए, एक तो टेक्निकल एंड एनालिटिकल डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए विद core HR knowledge like HR analytics and data integration, HRIS and ATS management, digital communication tools like Slack, Microsoft Teams, Zoom, also social media and employer branding like LinkedIn or Canva or ऑटोमेशन एंड AI अवेयरनेस लाइक चैट जीपीटी। इंसान को चैट जीपीटी का, ये नहीं कि सारा ही चैट जीपीटी के ऊपर ही निसार हो, बट कि थोड़ा बहुत वहां से आइडिया या सही से प्रॉम्प्ट दे के तो बहुत सारी अपनी जो है ना वो मुश्किलात जो आती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी बेसिक्स लाइक GDPR अवेयरनेस और IT सिक्योरिटी बेसिक्स के IT के क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं या क्या क्या सिस्टम थ्रेट हो सकते हैं, इसमें कमांड होनी चाहिए। So I think by learning these skills, they can strongly impact their employers as well. That concludes our episode number 2. Thank you so much, Mr. Sarmad. This has been a very insightful discussion. You have shown us how HR has transformed into smart data-driven processes, and also how digitalization is opening new opportunities for both professionals and job seekers. This conversation sparks new ideas for you, whether you are a student just starting your career, an HR professional adapting to change, or simply someone curious about the workplace's environment and how it is evolving in today's time and age. So remember, the edge is not just in the tools we use, but also how we embrace them to create value for others. Until next time, keep learning, keep adapting, and keep leading the change. Thank you so much.